welcome to my channel Al Shafa Medicos. After so long I have came with the video and my topic is rheumatoid arthritis, that is RA. So what are the contents of this video? Definition, causes of RA, clinical features, investigation of RA, differential diagnosis and treatment of RA. Differential diagnosis is nothing but the mistaken diagnosis. Okay. Arthritis, it's the inflammation of a joint. There is a pain, swelling in the joints. That is nothing but inflammation of a joint. Arthritis. So let's see what is rheumatoid arthritis. It is a chronic non-suppurative inflammation of synovial joints. Long time taking, non-suppurative means non-pus leaking inflammation of a synovial joints. Okay, there is a filling of the synovial fluids in between the joints. There it can happen, like joints of knee, elbow, hands, metacarpophalangeal joints. Okay, these are the commonly affecting joints in case of rheumatoid arthritis. What are the causes of rheumatoid arthritis? Exact cause is not known. इसका exact cause क्या है पता नहीं, but certain factors can play the role. Like it is a belief that rheumatoid arthritis results from exposure of a genetically predisposed individual to some infectious agents. वहाँ पे exact cause पता नहीं है, but ऐसा कुछ believe है कि जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज पर्सन है जिसके अंदर FR फैक्टर है पर्सनस के अंदर, अगर वो कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स को, स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट्स है, उसको एक्सपोज हो गया तो उनके अंदर ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है. ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होने के बाद उन लोगों के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं IgM एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके सिरम में. ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है साइनोवियल जॉइंट्स का. और वो स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट्स are Mycoplasma, Clostridium and Epstein-Barr virus, that is EBV. These are the causes, nothing but the beliefs. Exact we don't know. And clinical features occurs between age of 20 to 50 years. Women are affected about 3 times more than men. Mostly 20 to 50 years में होता है और women 3 times more than men affect होते हैं. इसके क्राइटेरियाज क्या है? ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग दैट rheumatoid arthritis इज देयर फॉर दिस पर्सन. ओके, फर्स्ट एन acute symmetrical polyarthritis. पर्सन के अंदर सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस होता है, मीन्स पेन एंड स्वेलिंग इन द एल्बो जॉइंट ऑफ राइट हैंड. देन देर विल बी सिमेट्रिकली पेन इन राइट हैंड elbow and swelling at a time. Both the hands are affecting, right and left. That is nothing but symmetrical polyarthritis. So second criteria, pain and stiffness in multiple joints, at least 4. पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगा joints में, at least 4 joints में, particularly in the morning, which marks the beginning of the disease. स्पेशली ये पेन और स्टिफनेस joints में कब रहेगा? मॉर्निंग के टाइम में रहेगा, जो डिजीज़ का ऑनसेट है. यहाँ से ये डिज़ीज़ स्टार्ट होता है. ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेन जो कॉमन सिम्टम है डिज़ीज़ का स्टार्ट का पेन और स्टिफनेस है जॉइंट्स की, स्पेशली मॉर्निंग में देखा गया है. एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज स्वेलिंग ऑफ 3 और मोर स्पेसिफाइड जॉइंट्स. स्वेलिंग रहती है 3 और मोर स्पेसिफाइड जॉइंट्स में. फोर्थ, रूमेटॉइड नोड्यूल्स, लंपी nodules will be there around the joints. That is nothing but rheumatoid nodules. Commonly affects metacarpophalangeal joints, wrist, knee, elbows and ankles. ये commonly affected joints है rheumatoid arthritis के. Others like onset may be with fever, cause of which cannot be established, especially in children. इसका onset even fever के साथ भी हो सकता है. Other than pain, I have said ना, पेन एंड स्टिफनेस, अदर देन फीवर के साथ भी स्टार्ट हो सकता है. और चिल्ड्रंस में अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखा गया तो फीवर के साथ स्टार्ट होता है और जिसका जो फीवर का काउज पता नहीं चलता है. वी डोंट नो द काउज इन द चिल्ड्रंस. ओके, ऑन एग्जामिनेशन करने पे पता चलेगा देर विल बी सॉलन बॉगी जॉइंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर इफ्यूजन.
जॉइंट एग्जामिनेशन करने पे जॉइंट कैसे रहते हैं, स्वेलन, बॉगी रहते हैं। किसकी वजह से, इंट्रा आर्टिकुलर इफ्यूजन, इन्फ्लेमेशन की वजह से, जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। साइनोवियल हाइपरट्रोफी एंड एडिमा ऑफ द पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो साइनोवियल स्पेस रहती है उसके सेल्स में हाइपरट्रोफी हो जाती है, सेल्स के साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का। जॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, जॉइंट्स में भी डिफॉर्म्ड, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स में भी लिमिटेड है, मोशन जो जॉइंट्स का होता है बहुत लिमिटेड हो जाता है। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इन लेटर स्टेजेस, जिसकी वजह से डिफॉर्म जॉइंट्स, लिमिटेड मोशन ऑफ जॉइंट्स की वजह से क्या हो सकता है, आगे लाइफ में डिसलोकेशन हो सकता है जॉइंट्स का। देयर में बी फीवर, रैश, फीवर हो सकता है कॉमन सिम्टम, रैश नॉन प्यूरेटिक मीन्स नॉन इचिंग, इचिंग नहीं रहती है वो रैश में, एंड मैक्यूलोपैपुलर ऑन फेस, ये सभी रैशेस मैक्यूलोपैपुलर रहते हैं, फेस पे रहते हैं, ट्रंक पे रहते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ पे रहते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ वैस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन होता है पूरे वेजल्स का, ये भी साइन होता है इसके अंदर। देन व्हाट आर द डिफॉर्मिटीज़ इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फर्स्ट इन हैंड, उल्ना ड्रिफ्ट ऑफ हैंड, बुटेनियर एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी। हैंड्स में उल्नार डेविएशन ऑफ द हैंड एंड फिंगर्स होता है, जो फिगर में दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये इमेज में प्रेजेंट है, देखिए उल्नार डेविएशन ऑफ हैंड एंड फिंगर, बोटोनियर डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये सभी प्रेजेंट है। सेकेंड, एल्बो में फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी होती है। थर्ड, नी में अर्ली फ्लेक्जन, लेट ट्रिपल सबलैक्सेशन होता है। फुट में हैलेक्स वाल्गस, हैमरटो एक्सेट्रा होता है, ये भी इमेज में प्रेजेंट है, देखिए हैलेक्स वाल्गस, हैमरटो फुट में होता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ RA आर वेरी कॉमन लाइक स्प्लीनोमेगाली, पेरिकार्डाइटिस, एनीमिया एक्सेट्रा। डो प्राइमरी इट इज़ अ क्रॉनिक पॉलीआर्थराइटिस। अभी तक आप लोगों ने पूरे इंट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस देखा था रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, देखिए RA का स्प्लीन इन्लार्जमेंट हो सकता है, और पेरिकार्डियम, हार्ट की जो कवरिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, बट प्राइमरीली क्रॉनिक पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है पेशेंट के अंदर। इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, that too is x-ray. X-ray is the most important one, radiological examination in case of bone diseases, bone deformities. Okay, keep it in the mind। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं एक्सरे से दोनों हैंड्स का और जो अफेक्टेड जॉइंट्स का। ये एक्सरे करने के बाद हमको क्या पता चलता है, देयर इज़ अ रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस, जो जॉइंट स्पेस रहता है एक्सरे में रिड्यूस आता है और इरोजन हो जाता है उसके एंडिंग मार्जिन्स का। जुक्स्टा आर्टिकुलर रेयरफैक्शन होता है, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स होता है, वो एक्सरे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सरे डाला है मैंने इमेज, इसमें बता रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हैंड्स, बोथ हैंड्स, विच इज शोइंग जुक्स्टा आर्टिकुलर रेयरफैक्शन। ओके, second, after radiological examination, which is the second important one, is blood test। elevated ESR आता है, ESR बहुत चेंज आता है पर्सनस में। दिस इज़ द स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट इन केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट्स। डिक्रीज हीमोग्लोबिन वैल्यू, डिक्रीज होता है, कम होता है हीमोग्लोबिन पेशेंट्स में। थर्ड, रूमेटॉइड फैक्टर, R फैक्टर का कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंडिकेटिव एंड एक्यूरेट टेस्ट इन केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। can belong, R factor can belong to any class of immunoglobulin. Okay, fourth is latex fixation test, agglutination test where antibodies coated to latex particle। latex fixation test में क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन करते हैं एंटीबॉडीज़ को लैटेक्स पार्टिकल में, जिसकी 80% सेंसिटिविटी है। फिफ्थ, रोज़ वाटर टेस्ट, यहाँ पे एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ये भी एक टाइप का क्लॉटिंग टेस्ट। वहाँ पे क्या करते हैं, शिप्स का रेड ब्लड सेल यूज़ करके एज ए कैरियर एग्लूटिनेशन करते हैं, जिसकी 60% सेंसिटिविटी है। ओके, नेक्स्ट देयर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल पेशेंट्स विथ पॉजिटिव R फैक्टर डू नॉट हैव RA। जो सभी पेशेंट्स हैं जिसके पास पॉजिटिव R फैक्टर प्रेजेंट है टेस्ट पे,
उनको ज़रूरी नहीं है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो. ओके. एंड कन्वर्सली ऑल पेशेंट्स विथ RA, जो भी सारे पेशेंट्स हैं जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, डू नॉट हैव पॉजिटिव आर फैक्टर. उनके पास ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव आर फैक्टर आना चाहिए जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट है. सो प्लीज़ कीप दिस नोट इन द माइंड. Sixth is synovial fluid examination. You can do the synovial fluid examination. Okay. Then seventh, synovial biopsy. In case of malignancy of the bones, you can go for the synovial biopsy. So next is the differential diagnosis of rheumatoid arthritis. First is systemic lupus erythematosus. In this we are saying what are the differences between this SLE and rheumatoid arthritis. Here joint involvement is non-symmetrical nor ankylosing, that is fused bones. Rheumatoid arthritis में कैसा है, there is a symmetrical bones are involved. यहाँ पे नॉन सिमेट्रिकल होते हैं और फ्यूजन नहीं होता है बोन्स का SLE में. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन RA एंड SLE. सेकेंड, ऑस्टियोआर्थराइटिस. Osteoarthritis is also the inflammation of the joints, bones in case of especially old age persons. So this is the difference, but RA is between 20 to 50 years. Third is psoriatic arthropathy. In this skin and nail lesions may be present. R factor is negative. यहाँ पे स्किन और नेल के लीजन्स होते हैं प्रेजेंट पर्सन के अंदर, बट RA में ये सभी नहीं प्रेजेंट रहता है, स्किन और नेल लीजन्स, और R फैक्टर पॉजिटिव रहता है. यहाँ पे सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी में R फैक्टर नेगेटिव है. ट्रीटमेंट्स देखिए इसके, बेसिकली ट्रीटमेंट शुड बी टेकन अंडर द फिजिशियन, बट फॉर जस्ट नॉलेज पर्पस आई एम सेइंग एम्स, उसका ट्रीटमेंट का एम क्या होना चाहिए, मेनली इंडक्शन ऑफ रिमिजन एंड इट्स मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ जॉइंट फंक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटीज, रिपेयर ऑफ जॉइंट डैमेज. ये सभी एम होना चाहिए जो ट्रीटमेंट का है. उसका जॉइंट्स का प्रिजर्वेशन करना चाहिए फंक्शन, और प्रिवेंशन करना चाहिए जो भी डिफॉर्मिटी हो रही है, और जॉइंट का जो डैमेज है उसको रिपेयर करना चाहिए. देर आर टू मेथड्स फॉर दिस RA treatment, medical and orthopedic. In medical there are NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs, etc. So many are there. Under the physician you can take. Second, orthopedic, same as AIMS. There are same as AIMS what I told. This orthopedic treatment come under non-operative and operative. In non-operative, physiotherapy and rehabilitation. Rehabilitation means improve functions of patients with the help of devices like braces, walking aids, etc. यहाँ पे पेशेंट्स को ब्रेसेस देते हैं, या और वॉकिंग एड्स मीन्स वॉकर वगैरह दे के या फिर कुछ स्टिक दे के वॉकिंग में हेल्प करते हैं जो RA पेशेंट होता है, बिकॉज वो पेशेंट के अंदर जॉइंट मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, वॉकिंग डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है, पेन रहता है पेशेंट को बहुत. सो इन ऑपरेटिव, preventive, palliative, reconstruction and salvage are there. Okay, so thank you for watching. Please like, comment and share.